Hello students, welcome to my YouTube channel. In this video, we are going to discuss about Ohm's law. To understand the Ohm's law, we will consider a conductor which is connected to a battery of potential V. So this is the positive terminal of battery and this is the negative terminal. And as we know, there are free electrons in the conductor, and those free electrons will, because these are negatively charged, these will get attracted towards the positive terminal and will flow towards this side. And as we know that the flow of electrons, current flow is in the direction opposite to the flow of electrons. Opposite direction में होता है, जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं उसके फ्लो से ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो करता है. इलेक्ट्रॉन्स अगर इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहे हैं तो करंट इसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करेगा. करंट फ्लो विल बी टुवर्ड्स दिस साइड. So now if we want to plot a graph between the potential and the current, suppose this is the potential axis and this is the current axis. Suppose initially the battery potential is 1 volt. What is the battery potential? The work done by potential applies the force on the electrons to attract towards the positive terminal. So जितना potential ज़्यादा होगा उतने ही ज़्यादा electrons इस positive terminal की तरफ attract होंगे. So initially if the potential is suppose 1 volt, so बहुत थोड़े से electrons हैं जो इस तरफ को attract होंगे, तो करंट भी हमारा, करंट की वैल्यू भी हमारी कम आएगी. सपोज इनिशियली 1 एम्पियर आ गई, करंट की वैल्यू है जो एम्पियर में है. सो ये वाला हमारा पॉइंट आ गया ग्राफ में. उसके बाद अगर हमने पोटेंशियल को 2 वोल्ट कर दिया तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स attracted towards the positive terminal will increase and hence the current will also increase. Okay, so suppose the battery potential is 2 volt and current will also increase, suppose 2 ampere. So this is the point, 2 volt and 2 ampere. This is the point in the graph. And if we increase the battery potential to 3 volt, then current will also increase, suppose 3 ampere, and we will get this point. We will get this point in the graph. So hence we will get a straight line graph. Straight line graph. Okay. So from here what we can say that with increase in potential, current increases. Means potential is directly proportional to current और current is directly proportional to potential. जितना potential increase करेगा उतना ही current भी increase करेगा. Okay, so from here we can state the Ohm's law. What is the statement of Ohm's law? That the physical conditions of the conductor remaining unchanged, the potential applied across the conductor is directly proportional to the current flowing through the conductor. Physical conditions means temperature, pressure. ये वाली जो physical conditions हैं वो अगर सेम है तो पोटेंशियल करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है. सो यहाँ से V इज इक्वल टू R इंटू आई आ गया. R इज द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी एंड दिस कांस्टेंट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस. इस कांस्टेंट को हम बोलते हैं रेजिस्टेंस. सो फ्रॉम हियर वी कैन डिफाइन द रेजिस्टेंस. व्हाट इज रेजिस्टेंस? यहाँ से हम रेजिस्टेंस को डिफाइन कर सकते हैं. R is equal to V divided by I. V upon I. So what is the definition of resistance? Mathematical definition of resistance from here. It is defined as ratio of the potential applied across the conductor
टू द करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर, दोनों की रेशियो को हम बोलते हैं रेजिस्टेंस। एंड इसका जो रेजिस्टेंस का जो फिजिकल मीनिंग है वो हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था। इसका फिजिकल मीनिंग होता है ऑब्स्ट्रक्शन टू द फ्लो ऑफ करंट। करंट के फ्लो में जो ऑब्स्ट्रक्शन होती है मींस रुकावट आती है, उसको हम बोलते हैं रेजिस्टेंस। क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं किसी कंडक्टर में से, तो उसके रास्ते में एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से सपोज फ्लो कर रहा है, तो उसके रास्ते में कोई और आयंस आते हैं, पॉजिटिव आयंस, या फिर कोई और इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, तो उनके साथ ये कोलाइड करता है, फिर मूव करता है, फिर कोलाइड करता है, फिर मूव करता है और कोलाइड करता है। तो ऐसे जिगजैग मोशन में इलेक्ट्रॉन मूव करता है। तो जितने ज्यादा कोलिजन्स होते हैं इसके इलेक्ट्रॉन्स के, उतनी ही ज्यादा ऑब्स्ट्रक्शन होती है, तो उसको हम बोलते हैं रेजिस्टेंस। उतना ही करंट फ्लो हमारा कम होता है। ओके, तो करंट फ्लो विल बी लो if the resistance will be high. Okay, so this was all about resistance and Ohm's law. Next is resistivity. What is resistivity? रेजिस्टिविटी के बारे में हमने डिटेल में प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था। इसका सिंबल होता है रो, इसको हम रो के साथ डिनोट करते हैं। रेजिस्टिविटी क्या होती है? उस कंडक्टर की रेजिस्टेंस को हम रेजिस्टिविटी बोलते हैं जिसकी लेंथ 1 मीटर हो और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 मीटर स्क्वायर हो। तो मींस एक खास तरह की जो रेजिस्टेंस है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, उसको हम रेजिस्टिविटी बोलते हैं। रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी के बीच में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। रेजिस्टिविटी भी रेजिस्टेंस ही होती है, बट उसमें जो डायमेंशंस है कंडक्टर की वो स्पेसिफिक होनी चाहिए कि 1 मीटर लेंथ होनी चाहिए उस कंडक्टर की और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 मीटर स्क्वायर होना चाहिए। उस रेजिस्टेंस, उस कंडक्टर की रेजिस्टेंस को हम बोलते हैं रेजिस्टिविटी। और इसके फॉर्मूले के बारे में हमने डिटेल में प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था। यू कैन गो टू दैट वीडियो एंड watch that video. So now we will discuss about resistivity values. resistivity की values जो है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। जो हमारे कंडक्टर्स हैं, कंडक्टर्स मींस मेटल्स। कौन कौन सी मेटल्स हैं? जैसे कि सिल्वर है, कॉपर, एल्यूमिनियम, टंगस्टन और आयरन। ओके, ये सारी जो मेटल्स हैं इनकी रेजिस्टिविटी की वैल्यू बहुत लो है। रेजिस्टिविटी की वैल्यू लो होती है और 10⁻⁻8 ओम मीटर इस ऑर्डर की हैं। सिमिलरली जो एलॉयज हैं, एलॉयज कौन एलॉयज क्या होते हैं? जो मेटल्स का मिक्सचर हो उनको हम एलॉयज बोलते हैं। जैसे कि कॉन्स्टेंटन है, कॉन्स्टेंटन, मैंगनीन एंड नाइक्रोम, ये सारी एलॉयज हैं। एलॉयज की भी रेजिस्टिविटी वैल्यू है जो 10⁻⁻8 ओम मीटर के ऑर्डर की होती है। इनकी रेजिस्टिविटी वैल्यूज भी काफी लो होती हैं। बट इनमें, इन मेटल्स और एलॉयज में से सबसे कम वैल्यू है जो रेजिस्टिविटी की, वो है सिल्वर की। ओके, सो यहाँ पे एक ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अगर सिल्वर की रेजिस्टिविटी सबसे कम है, इसका मतलब ये है कि इसमें से करंट, इलेक्ट्रॉन फ्लो है जो वो
इजीली हो पाता है क्योंकि रेजिस्टेंस इसमें कम है। रेजिस्टिविटी लो है तो रेजिस्टेंस भी लो है। रेजिस्टेंस लो मीन्स इलेक्ट्रॉन फ्लो इज इजी। इलेक्ट्रॉन फ्लो इजी है तो मीन्स करंट इज हाई। अगर इसमें से करंट हाई पास कर सकता है तो हम सिल्वर की वायर्स क्यों नहीं यूज करते। जो कनेक्टिंग वायर्स होती हैं या इलेक्ट्रिसिटी वायर्स होती हैं वो सिल्वर की क्यों नहीं यूज करते? क्योंकि जो सिल्वर की कॉस्ट है वो हाई है, इसकी कॉस्ट हाई होती है। ओके, सो इसीलिए हम सेकंड नंबर पे जो इसकी वैल्यू है जिसकी रेजिस्टिविटी की, सिल्वर से थोड़ी सी कम है कॉपर की, तो इसलिए हम कॉपर को यूज करते हैं क्योंकि कॉपर की जो इकोनॉमिकली भी ये चीपर है इससे, सिल्वर से। और दूसरा इसकी रेजिस्टिविटी भी ऑलमोस्ट कम है, सेकंड लास्ट पे है ये, सबसे कम ही है। सिर्फ सिल्वर से थोड़ी सी ज्यादा है इसकी रेजिस्टिविटी। अदरवाइज सबसे कम वैल्यू है जो कॉपर की है, इसलिए हम कॉपर को यूज करते हैं। ओके, और जो दूसरे हैं हमारे इंसुलेटर्स, इंसुलेटर्स एंड सेमी कंडक्टर्स हैं। इनकी सेमी कंडक्टर जैसे कि सिलिकॉन, जर्मेनियम हो गया, इंसुलेटर्स जैसे कि रबड़, प्लास्टिक, ये इनकी सभी की वैल्यू है जो रेजिस्टिविटी की वो बहुत हाई होती है। रेजिस्टिविटी हाई मींस उनमें से जो रेजिस्टिविटी हाई मींस रेजिस्टेंस इनकी बहुत हाई है, और रेजिस्टेंस हाई मींस इलेक्ट्रॉन कोलिजन्स बहुत ज़्यादा होते हैं, इलेक्ट्रॉन फ्लो बहुत मुश्किल से हो पाता है इसमें से। तो इट मीन्स करंट फ्लो है जो वो बहुत कम होता है, करंट लो होता है इनमें से। इसलिए हम इंसुलेटर्स की जो डेफिनेशन होती है क्या बोलते हैं? इंसुलेटर्स आर द मटेरियल्स जिनमें से करंट पास नहीं कर सकता। ओके, तो नाउ लेट अस स्टार्ट द नेक्स्ट टॉपिक विच इज कंडक्टेंस। कंडक्टेंस को हम जी सिंबल के साथ डिनोट करते हैं। कंडक्टेंस क्या होता है? रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल होता है, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। जी इज इक्वल टू 1/r। और इसकी एसआई यूनिट्स क्या होती है? फिर एसआई यूनिट्स हो जाएंगी जो रेजिस्टेंस की एसआई यूनिट्स होती हैं ओम होती हैं, तो उसी का रेसिप्रोकल पर ओम। पर ओम ये इसकी एसआई यूनिट्स होती हैं। पर ओम को हम मो भी बोलते हैं, MHO, और इसको हम साइमन भी बोलते हैं, साइमन। ओके, सो कंडक्टेंस क्या होती है? रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस एंड इट्स एसआई यूनिट्स आर पर ओम और मो और साइमन। नेक्स्ट टॉपिक इज कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी कंडक्टिविटी का सिंबल जो होता है सिग्मा होता है, एंड दिस इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी का इनवर्स जो होता है उसको हम कंडक्टिविटी बोलते हैं। सिग्मा इज इक्वल टू 1/ρ, एंड इसकी जो एसआई यूनिट्स होती हैं, एसआई यूनिट्स क्या होंगी? जो रेजिस्टिविटी की यूनिट्स थी उसका रेसिप्रोकल। जैसे कि रेजिस्टिविटी की यूनिट्स क्या थी? ओम, मीटर। तो कंडक्टिविटी की यूनिट्स क्या आ गई? पर ओम, पर मीटर, दैट इज मो पर मीटर, और साइमन पर मीटर। So these are the SI units of conductivity. So from here what we can say that अगर resistivity कम है तो उस मटेरियल की कंडक्टिविटी हाई होगी। ओके, रेसिप्रोकल मीन्स अगर रेजिस्टिविटी लो है तो उसकी कंडक्टिविटी हाई होगी, और अगर रेजिस्टिविटी हाई है तो कंडक्टिविटी लो होगी। In next topic we will discuss about temperature dependence of resistivity. Temperature dependence of resistivity.
मीन्स टेम्परेचर के साथ टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं जब हम, तो रेजिस्टिविटी पे क्या इफेक्ट होता है ये हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं इन केस ऑफ कंडक्टर्स। कंडक्टर्स या फिर मेटल्स के केस में टेम्परेचर का रेजिस्टिविटी के ऊपर क्या इफेक्ट होता है। When we increase the temperature of a conductor, suppose कोई कंडक्टर है उसका हमने टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया, तो क्या होगा, इसमें जो भी आयंस हैं, पॉजिटिव आयंस हैं जैसे कंडक्टर में, उनकी जो वाइब्रेशंस हैं वो बहुत ज्यादा हो जाती हैं। वाइब्रेशंस मींस ये एक ऐसे वाइब्रेट करना शुरू कर देते हैं। आयंस क्या करते हैं, पॉजिटिव आयंस वाइब्रेट करना शुरू कर देते हैं। वाइब्रेशंस हैं जो वो इंक्रीज हो जाती है। ओके, वाइब्रेशंस का जो एम्पलीट्यूड है वो इंक्रीज हो जाता है। एम्पलीट्यूड मींस वाइब्रेशंस का जो इंटेंसिटी है, वाइब्रेट ज्यादा करना शुरू कर देते हैं विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। और अगर वाइब्रेशंस ज्यादा हो गई तो जो इलेक्ट्रॉन फ्लो था वो, उसमें रेजिस्टेंस ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन मूव करेगा तो वाइब्रेशंस ज्यादा होने की वजह से कोलिजन्स ज्यादा हो जाएंगे। जो इलेक्ट्रॉन मोशन होएगा वो डिफिकल्ट हो जाएगा, क्योंकि क्योंकि जो कोलिजन्स हैं वो इंक्रीज हो जाएंगे, ज्यादा आयंस के साथ कोलाइड करेगा। और अगर कोलिजन्स ज्यादा हो गए तो हमारा जो इलेक्ट्रॉन था, एक इलेक्ट्रॉन, वो जब मूव करेगा तो उसका जो एवरेज रिलैक्सेशन टाइम है टॉ, वो बहुत कम हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन बहुत कम टाइम के लिए फ्रीली मूव करेगा, अदरवाइज ये कोलाइड करता रहेगा। कुछ बहुत शॉर्ट टाइम के लिए इलेक्ट्रॉन है जो वो फ्रीली मूव करेगा। रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है, जिस टाइम के लिए इलेक्ट्रॉन फ्रीली मूव करता है विदाउट कोलाइडिंग विद अदर आयंस और इलेक्ट्रॉन्स। सो अगर रिलैक्सेशन टाइम हमारा लो हो गया तो इट मीन्स हम जो रेजिस्टिविटी है या फिर रेजिस्टेंस है ये दोनों हाई हो जाएंगे। ओके, कोलिजन्स ज्यादा हो गए, इलेक्ट्रो ऑब्स्ट्रक्शन टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गई, तो रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी दोनों हाई हो जाएंगे। तो फ्रॉम हेयर व्हाट वी कैन से दैट विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर के इंक्रीज करने के साथ जो मेटल्स हैं या कंडक्टर्स हैं उनकी रेजिस्टिविटी इंक्रीज करती है विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। क्यों इंक्रीज करती है, क्योंकि जो आयंस है उनकी वाइब्रेशंस इंक्रीज कर जाती हैं। पॉजिटिव आयंस की वाइब्रेशंस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर इंक्रीज कर जाती हैं और उनका जो वाइब्रेशंस का एम्पलीट्यूड है वो इंक्रीज कर जाता है। और इसीलिए जो हमारा जो कोलिजन्स हैं वो हाई, जो ज़्यादा हो जाते हैं, इलेक्ट्रॉन कोलिजन्स ज़्यादा हो जाते हैं और एवरेज रिलैक्सेशन टाइम लो हो जाता है, जिसकी वजह से रेजिस्टेंस हाई हो जाती है और इसलिए रेजिस्टिविटी हाई हो जाती है। So now we will discuss that what is the effect of temperature on resistivity of semiconductors। सेमीकंडक्टर्स की रेजिस्टिविटी पे टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है। सपोज हमने टेम्परेचर है जो वो इंक्रीज कर दिया किसी सेमीकंडक्टर्स कौन कौन से होते हैं, जैसे सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम, दीज आर दी फेमस सेमीकंडक्टर्स। तो सेमीकंडक्टर्स में जो रेजिस्टिविटी है वो क्या होती है, रो इक्वल टू रो नॉट ई रेज टू पावर ई जी बाई के टी। ये फॉर्मूले को सेटिस्फाई करती है इनकी जो रेजिस्टिविटी होती है सेमीकंडक्टर्स की। वहां यहाँ पे जो Eg है, Eg इज द एनर्जी गैप बिटवीन द वैलेंस बैंड एंड द कंडक्शन बैंड। कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच में जो एनर्जी गैप है दैट इज Eg। Eg is the energy gap between the valence band and the conduction band.
तो जो सेमीकंडक्टर्स हैं उनकी जो रेजिस्टिविटी है वो इस फॉर्मूले को सेटिस्फाई करती है, जिसमें Eg इज द एनर्जी गैप बिटवीन द वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड। सो अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे, विद इंक्रीज इन टेम्परेचर क्या होगा, ये वाली वैल्यू हमारी डिक्रीज कर जाएगी और इसलिए रेजिस्टिविटी हमारी कम हो जाती है। विद इंक्रीज इन टेम्परेचर रेजिस्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर डिक्रीजेस। रेजिस्टिविटी क्या करती है, डिक्रीज। Here these questions can be asked on the basis of conductivity पे भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है शॉर्ट क्वेश्चंस में कि व्हाट इज द इफेक्ट ऑन कंडक्टिविटी विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर का इस पे कंडक्टिविटी पे क्या इफेक्ट होता है। तो क्योंकि हमने रेजिस्टिविटी के बारे में पढ़ लिया, तो कंडक्टिविटी इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी। अगर रेजिस्टिविटी डिक्रीज करती है तो कंडक्टिविटी क्या करेगी, इंक्रीज। सो ये शॉर्ट क्वेश्चन में ये पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन कंडक्टिविटी ऑफ मेटल्स, और व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर्स। ये दो क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं। रेजिस्टिविटी के बारे में तो हमने पढ़ लिया, जो मेटल्स हैं इनकी रेजिस्टिविटी है विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, ये क्या करती हैं, इंक्रीज करती है रेजिस्टिविटी। और जो सेमीकंडक्टर्स हैं इनकी रेजिस्टिविटी डिक्रीज करती है। और अगर ये क्वेश्चन पूछा गया कि व्हाट इज द इफेक्ट ऑन कंडक्टिविटी ऑफ मेटल्स विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, तो हम क्या कहेंगे कि इनकी जो कंडक्टिविटी क्या करती है, डिक्रीज, क्योंकि ये रेसिप्रोकल है रेजिस्टिविटी। अगर रेजिस्टिविटी इंक्रीज की है तो कंडक्टिविटी डिक्रीज ही करेगी। ओके, एंड इन केस ऑफ सेमीकंडक्टर कंडक्टिविटी विल इंक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, क्योंकि विद इंक्रीज इन टेम्परेचर क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं पहले 0 केल्विन पे तो इलेक्ट्रॉन के पास इतनी एनर्जी नहीं होती जो वैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन्स हैं, बट अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज कर देते हैं तो ये वाले जो वैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन्स हैं इनको सफिशिएंट थर्मल एनर्जी मिल जाती है और ये जंप कर जाते हैं टू द कंडक्शन बैंड। तो या ऐसे कंडक्टिविटी है, जो इलेक्ट्रॉन्स की कंडक्टिविटी है वो इंक्रीज करती है विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। So this was all about conductivity and resistivity. These are very important questions for exam point of view. So if you like this video, share this video and subscribe the channel Physics Conversation with Dr. Paul. Thank you.